Hello and Assalamualaikum everyone, and a very good evening. How are you all doing? And how's everything at your place? That's great that you're doing great. Yes, Alhamdulillah, I'm also good. Alhamdulillah. I'm good. And perhaps if it's your first class together, and most of you might assume कि यहाँ पे इतने सारे नेम किस किस के हैं, if it's your first class together. So remind करवा दूं कि actually I'm taking the class of batch 28 and 29 together, as I actually told you guys earlier. I think I told batch 29 that I'm going to take your class with batch 28. Because of the lack of time and because of my busy schedule, I actually had missed one class of batch 29. That's why I had to take a combined class, ताकि उनका जो है लॉस ना हो. Yeah, I think I told batch 29 and not 28. I just forgot it maybe or something. I don't know why. It's just like कि आजकल बहुत इतना busy schedule हो गया कि I'm just forgetting a lot of things कि मुझे कहाँ क्या मैसेज करना है, कहाँ क्या याद कराना है चीज. So काफी बहुत ही अप एंड डाउन सारे, बट आई होप सब सेट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर ही बस, बल्कि विद इन 5 days एवरीथिंग वुड बी फाइन इंशाल्लाह. टेंशन टेंशन ना लो बच्चे. एक्चुअली यू नो मेरी पूरी डिग्री का ना अब कंक्लूजन निकलने वाला है. सो दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली क्वाइट लाइक लिटरली सो बिजी. खैर, एडमिट नहीं नहीं सर, आज मैं सर आसिम के सामने मेरा बिजी स्केड्यूल कुछ भी नहीं है. लाइक मैन ही इज सो बिजी उनके. लाइक आई ऑफन माशाल्लाह वंडर कि हाउ ही इज लाइक कंडक्टिंग और मे बी मैनेजिंग इतने सारे क्लासेस, लाइक बैक टू बैक ऑनलाइन क्लासेस होते हैं. ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी इनरोलमेंट, टीचर्स हो गए, ऑफलाइन टीचर्स जो हैं, एंड लाइक उनके सामने तो मेरी बिजी स्केड्यूल कुछ भी नहीं है. So I'm not going to compare my schedule with his because obviously he's way too busy than me. By the way, yes, आपके ये दोनों बैचेस हैं मेरे साथ, आज दोनों मौजूद हैं. And inshallah we are going to have an interactive session together. And since हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा grammatical नहीं है, वो थोड़ा kind of हमारा different lens में है. And today, as you know, हमारे link के अंदर भी कि we are going to talk about reading comprehension and everything that is necessary to know about your reading comprehension, specifically आपके English test के हवाले से. So, yep, this is your topic of the session, and these are your objectives. All right. So these are your objectives that we are going to, achieve, inshallah, by the end of today's session. So yes, go through them once, ताकि हम proceed करें towards the session. Okay, so it's done. All right. ठीक है. हमारे आज की क्लास को इनिशिएट क्यों करते हैं कि सी, ऑल्दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारे टेस्ट में पार्ट आता है, दैट इज क्वाइट इजी, जिसको हम समझते हैं कि ये तो हम कर ही लेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज राइट देयर इन द पैराग्राफ.
and we have to do accordingly. So, before starting how to deal with reading comprehension, my question is, how do you take this concept, or what do you think about reading comprehension? Yeah, what do you think reading comprehension is? लाइक यू सी, हमारे पास ये कंपाउंड वर्ड है, राइट? यानी दो अल्फाजों को मिला हुआ एक वर्ड है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. सो आपके अकॉर्डिंग ये जो कॉन्सेप्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ये एक्चुअली है क्या? प्लस अगर हम टेस्ट के हवाले से देखें तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आ रहा होता है? हाँ जी, किसी के पास कोई आइडिया इस हवाले से? Okay, we got one response, that is ability to read text, paragraphs, and understand its meaning. Got it. So the keyword is paragraphs and understand. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिप्लाई की तरफ, जो आई थिंक गायब हो चुका है, आई डोंट नो. हाँ, like ability to understand paragraph and make meaning of the paragraph. Okay. Carefully reading and understand the meaning of the paragraph. Okay. Any other response? किसी के माइंड में थोड़ा डिफरेंट आंसर या थोड़ा डिफरेंट रेस्पॉन्स अदर देन जो हम लोगों को इस वक्त मिल चुके हैं, दैट इज more likely inclined towards the reading and understanding a paragraph, right? Understanding the paragraph carefully. Okay, so the similar idea. ठीक है. So the keywords जो आप लोग के responses से हमारे पास आए हैं, that is ability. Okay, we got another response, ability to understand paragraph and answers from that questions. Okay. Yep. So the keywords that we have got from your responses are: number one, uh, the ability to read something; number two, the ability to understand something, and that something is specifically our paragraphs, right? So actually, reading comprehension we solve queries from paragraph, ठीक है? Questions out of those paragraphs, right? ठीक है. सही responses हैं and बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं. See the word, since I said कि ये कंपाउंड वर्ड है, that means कि it's including two different words. अब आपकी एक जगह बात हो रही है रीडिंग की, अगली जगह बात हो रही है कॉम्प्रिहेंशन की. रीडिंग इज लाइक यू आर, इवन दो यू आर रीडिंग समथिंग, लाइक कि आप लोग उस चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन रीडिंग इज समथिंग अदर देन जस्ट यू नो आप चीजों को पढ़े जा रहे हैं. सो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, दैट इज यू नो on a different scale, या on a different angle than actually reading is. ठीक है, रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली चीजों को रीड आउट कर रहे होते हैं, एंड लाइक रीडिंग आउट इन अ सेंस के हम समझ रहे होते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है. लेकिन जब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे होते हैं ना, वो दैट इज मोर लाइकली कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करें, लाइक आप उनको मेंटली ग्रास्प करें चीजों को, ठीक है. वट एवर द कॉन्सेप्ट इज, इवन पैराग्राफ ना भी हो, हमारे सेंटेंसेस भी हों, कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग सिंपली क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग किसी चीज में से उसकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है. जो आपके पास रीडिंग मौजूद है, यानी जो टेक्स्ट मौजूद है, आप उसको रीड आउट करें एंड यू आर एक्सट्रैक्टिंग द अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट. सो वी नो कि दिस कॉम्प्रिहेंशन इज एक्चुअली अ नाउन, ठीक है. मीन्स देयर इज आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, राइट?
और जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, ये एक्चुअली वर्ड हमारे पास कॉम्प्रीहेंड से निकला हुआ है। एंड कॉम्प्रीहेंड अगेन मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग और टू टू मेंटली ग्रास्प समथिंग। सो व्हेन वी से कि मेंटली ग्रास्प समथिंग, दैट मीन्स कि अब हम जो रीडिंग कर रहे हैं ना, हम उस पर पूरा अपना माइंड का फोकस लगा रहे हैं ताकि हम एक चीज को समझ सकें। यानी उसको उसके हर एक एंगल से समझें कि उसमें क्या बात हो रही है, हमें क्या डायरेक्शन दी जा रही है, और थोड़ा क्रिटिकली, एक क्रिटिकल लेंस से चीजों को रीड आउट करें। ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स, कि हम लोग बात बात कर रहे होते हैं कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, उनको जो है उनके हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करें। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन isn't just about reading something. It's about okay, you have the skills to identify the main ideas in the paragraph. ठीक है, because reading comprehension में if I specifically talk about कि हमारे पास reading comprehension अगर हम टेस्ट के लेंस से देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ्स आ रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस टाइप का टेस्ट है, कभी एक पैराग्राफ आ रहा होता है। अगर हमारे पास हायर लेवल का टेस्ट है, यानी आप लोग स्पेसिफिकली इंग्लिश कॉम्पिटेंसी के टेस्ट दे रहे हैं, जैसे हमारे पास आइल्स हो गया या टॉफिल हो गया, जो हमारे पास होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को असेस करने के लिए, राइट। सो अगर आप उस लेवल के टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमारे पास जो है आपकी जो लेंथ होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। सो इफ आई से कि आपके आईडी में अगर कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रही है तो उसकी लेंथ होगी मोर अबाउट 2 to 300 वर्ड्स। इससे कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा यूजुअली नहीं जाती। ठीक है, यानी आपकी जो रीडिंग होती है वो आपकी एक पेज तक की होती है तकरीबन, या हाफ लाइक क्वार्टर पेज, इस तरीके से होती है। लेकिन फॉर इंस्टेंस यू आर गिविंग एन एग्जाम ऑफ योर इंग्लिश टेस्ट, यानी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोग अटेंड करें तो वहां पे आपकी और ज्यादा एक्सीड होती है। सो दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू नो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स। ठीक है, अब स्किल्स किस चीज की, एज आई सेड कि आपके पास स्किल होने चाहिए टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है that doesn't have any topic name, or that doesn't have the name of what the paragraph is about। ठीक है, so अगर आपके पास नेम नहीं है तो what usually happens कि since हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन का फैक्टर नहीं है, तो हम लोग इस चीज से घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं किस चीज के हवाले से बात हो रही है, इस टॉपिक में पता नहीं किस चीज के हवाले से ये टॉपिक होगा। और व्हाट वी यूजुअली डू इज कि हम ऊपर ऊपर से स्किमिंग कर लेते हैं और हम एक काइंड ऑफ आइडिया एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये पैराग्राफ किस चीज के हवाले से। ठीक है, बट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड एंड टू आइडेंटिफाई द मेन पैराग्राफ और मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग समझनी होगी। सो इफ आई आस्क कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो कि हम लोग एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, यानी एक कोई भी टेक्स्ट हो गया उसमें इफ आई से चलो पैराग्राफ हो गया, आप डू यू नो कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोग क्या, हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं जो हम लोगों ने हमेशा माइंड में रखना होता है व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। या फिर कहने का मकसद ये है कि एक पैराग्राफ लिखने का फॉर्मेट पता है। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि अगर अगर आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना आता है ना, वो आपको एक डायरेक्शन देगा कि आप पैराग्राफ को रीड कैसे करें। ठीक है, या आप उस पैराग्राफ के हवाले से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, या उस पैराग्राफ को आप पढ़ें कैसे, या किस लेंथ से पढ़ें कि आप लोग का टाइम भी ज्यादा जो है कंज्यूम ना हो और आप लोग को चीजें भी समझ आ रही हो, आप लोग को मेन आइडियाज भी समझ आ रहे हो पैराग्राफ में। नॉट रियली, बट इट कुड बी द इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड first about the topic. Okay. We need a group of sentences which are related to each other. ठीक है, coherence, that is also one aspect of writing a paragraph. आपका जो paragraph है वो coherent होना चाहिए। That means कि आपके ideas along with the type of sentences you are choosing, right? वो एक दूसरे से like उनमें ना आपकी coherence आए, यूं ना हो कि आप एक जगह कोई और बात करें, एक जगह कोई और बात करें। So a paragraph needs to be coherent. लेकिन इसके अलावा हम कैसे लिख रहे होते हैं पैराग्राफ, कोई भी आइडिया, एनी एनी थॉट जो भी आपके माइंड में आ रहा है, द बैकग्राउंड एंड द थीसिस स्टेटमेंट,
Yeah, thesis statement or your introductory sentence. ठीक है, almost there. Topic sentence is sentence supporting topic details and concluding sentences, right? And the body paragraph, additional information, and the last thesis statement. Right. ठीक हो गया. इन रेस्पॉन्सेज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर पैराग्राफ, लाइक दिस इज द पेज यू आर राइटिंग द पैराग्राफ ऑन, एंड आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल अबाउट पेट्रोटिज्म और एनी टॉपिक. मेरे माइंड में इस वक्त पेट्रोटिज्म आया तो मैंने जस्ट बोल दिया, बट द टॉपिक कैन बी एनीथिंग. आप लोग इनिशियली पैराग्राफ लिखते हुए क्या करते हैं? आप पैराग्राफ को, आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखते हैं, या जिसको हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है. द थीसिस स्टेटमेंट और द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इज इज द कंक्लूजन, या आप कह लें कि एक डायरेक्शन टूवर्ड्स कि आप आगे क्या ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई पैराग्राफ इज अबाउट पेट्रोटिज्म, दैट मीन्स कि जो मेरी थीसिस स्टेटमेंट हो या मेरी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो, वो उस टॉपिक की तरफ इतना इस तरीके से इंक्लाइन करे कि वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करवा रहा हूँ, साथ में वो उन आइडियाज को भी सपोर्ट कर रहा हो जो आप आगे लिखने वाले हैं, ठीक है. यानी वो आपका एक काइंड ऑफ समरी पोर्ट्रे करे आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ के हवाले से, ठीक है. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन पैराग्राफ, ठीक है. अब मैं ये नहीं बता रही कि आप अपना एसेस में, क्योंकि वी नो के ऐसे में हमारे पास बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स होते हैं, राइट. सो हम एक पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, तो एक पैराग्राफ को लिखने के लिए व्हाट यू यूजुअली डू इज कि आप यहाँ पे अपनी सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखते हैं, और अपनी थीसिस स्टेटमेंट, आप इसको थीसिस स्टेटमेंट कह लें या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कह लें, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है. सो आई एम जस्ट राइटिंग आई एस एज योर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, या आप लोग इसको टी एस लिख दें थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से, ठीक है. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि आप लोगों ने सबसे पहले वो चीज मेंशन करनी होती है. अब ये जो लाइन होती है ना, वो इतना एक्सप्लिसिटली नहीं बता रही होती कि आपका पैराग्राफ स्पेसिफिकली किस हवाले से, क्योंकि इसमें इस स्पेसिफिक लाइन में आपके जो है यूजुअली, अच्छा, वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है. वन वे इज कि आप लोग सारा का सारा उसमें एक चंक ऐड कर दें कि आपका पैराग्राफ किस हवाले से है, और जो नेक्स्ट आपकी एडिशनल सेंटेंसेस होंगे जिसको हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स, वो किस हवाले से बात करनी होगी, ठीक है. वन वे इज कि आप यूं लिखें. द अदर वे इज कि आप एक जनरल स्टेटमेंट लगाते हैं अपनी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के अंदर, जो आपके टॉपिक के हवाले से एक जनरल व्यू दे रहा होता है, ठीक है. नॉट द स्पेसिफिक जिसके आप हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल व्यू, ठीक है. So that is all about your introductory sentence. ये ऐसे contains one first specific quotation. Specific quotation. तो see, there are a lot of ways to write essays or paragraphs. ठीक है. Quotations की जब हम बात करते हैं ना, it's just like we are quoting someone's word. ठीक है. लेकिन जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से या पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं ना, हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में यूजली जनरल जाना होता है या स्पेसिफिक जाना होता है. अब स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अब आप डायरेक्टली इंक्लाइन करेंगे अपने टॉपिक की तरफ. बट इफ यू आर टॉकिंग जनरली, तो आप किसी की कोट्स को अपने वर्ड्स में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में यूज कर सकते हैं. यूजुअली क्या होता है कि हम डायरेक्ट फर्स्ट लाइन को कोट नहीं करते, यानी हम किसी और का वर्ड उठा के उसको डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते. हाँ, हम उसको अपने इनडायरेक्टली उस बात को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि दिस वन इज योर फर्स्ट थीसिस स्टेटमेंट और योर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है. आपने वो लिख दिया. अब उसके बाद आ जाती हैं आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स. सो योर सपोर्टिंग डिटेल्स कैन बी ऑफ वन लाइन, टू लाइन और थ्री लाइन्स, जितनी आप लोग सपोर्टिंग डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं. यूजुअली हमारे पास रेकमेंडेड होता है कि आपकी 3 सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए लाजमी, ठीक है. किसी भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को आपके 3 डिटेल्स जो है वो सपोर्ट करें. सपोर्टिंग डिटेल्स आर जस्ट लाइक कि आपका अगर पैराग्राफ पेट्रोटिज्म के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वर टॉकिंग अबाउट योर पेट्रोटिज्म, दैट मीन्स कि अब 3 आप लोग ऐसी बातें करें जो आपकी पेट्रोटिज्म को टच कर रही हो, यानी एक बात कोई और बात कर रही हो, सेकंड डिटेल कुछ और हो, थर्ड डिटेल कुछ और हो, लेकिन ये सारे कहीं ना कहीं आपकी थीसिस स्टेटमेंट या आपके इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को ही बयान कर रहे हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एंगल से. अगर एक जगह पेट्रोटिज्म की बात करें, तो आप एक जगह बात कर सकते हैं उसकी कल्चर की, यानी यू शुड प्रमोट द कल्चर ऑफ एनी कंट्री.
या आप बात कर सकते हैं कि आपको अपनी कंट्री के लिए किस तरह सेक्रीफाइसेस देने चाहिए, या आपको जो है क्या क्या करना चाहिए, लाइक ऑल द पीपल हु आर पेट्रोटिक वो किस किस हवाले से जो है चीजें कर रहे होते हैं। थर्ड, आप लोग सपोर्टिंग डिटेल्स अनदर एंगल से मेंशन कर सकते हैं कि पेट्रोटिज्म में हमारे पास किस किस तरीके के एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। सो अब क्या होगा, हम लोग बात जो है अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस की तीन डिफरेंट डायरेक्शन से दें। सो दीज आर जस्ट काइंड ऑफ डिटेल जो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही होती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सपोर्टिंग डिटेल्स। लास्टली व्हाट यू एक्चुअली डू इज कि आप यहाँ पे अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस कर देते हैं। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस अगेन आपका कहीं ना कहीं इस सारे के सारे चंक को बात कर रहा होता है, लेकिन इनको कंक्लूड कर रहा है, जस्ट लाइक योर समरी, ठीक है। जिस तरीके से आप समरी स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं अपने एसेस के अंदर, जो आपके पूरे के पूरे ऐसे के हवाले से एक समराइज कर रहा होता है, इसी तरीके से आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सो सिंस वी गॉट के हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, तो अब हम समझेंगे कि जब हमारे पास लिखा हुआ पैराग्राफ आ रहा है तो अब हम उसकी मेन आइडिया को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई वाज सेइंग कि आपके पास स्किल होने चाहिए टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, राइट। अब वो मेन आइडिया किस तरीके से होता है, ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट और सपोर्टिंग डिटेल्स में कहीं ना कहीं हमारे पास मेन आइडिया मौजूद होता है, तो दैट मीन्स के यू शुड हैव द एबिलिटी to understand your main idea along with the supporting details, or you should have the skill to draw the conclusions, क्योंकि sometimes हमारे पास इस तरह का पैराग्राफ होता है जिसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता कि वो किस हवाले से बात हो रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास चीजें छुपी भी होती हैं, ठीक है। So that means कि you should have the ability to to make inferences, to draw conclusions out of those paragraphs। डायरेक्ट टेस्ट में कितने पैराग्राफ्स आते हैं, एक ही पैराग्राफ आता है, या अगर दो भी आते हैं ना तो वो उसकी उनकी लेंथ ना इतनी होती है कि वो एक पेज में आते हैं हमारे पास, या कभी कभी हाफ पेज में भी आते हैं, डिपेंड्स, वेरी करता है, 2 to 300 वर्ड्स या फिर 1 to 200 वर्ड्स, इससे ज्यादा आपके मैक्सिमम वर्ड्स नहीं होते। हाँ जी। तो आई वाज सेइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास बहुत सी एसेंशियल स्किल्स होनी चाहिए टू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड टू नेविगेट कि आपके पास पैराग्राफ किस हवाले से आया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको, ये जो मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन किया ना, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू रीड द पैराग्राफ, क्योंकि अब आप इस लेंस से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऑल्दो वो सपोर्टिंग डिटेल्स डिफरेंट है, लेकिन वो एक आइडिया को सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो ये जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती है ना, ये एक्चुअली हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती हैं कि इस एक पैराग्राफ में तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब मुझे कैसे पता कि ये किस हवाले से बातें हो रही हैं। वो एक्चुअली हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रही होती हैं हमारी मेन आइडिया को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्चुअली टेस्ट में किस किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। So what you actually going to have in your test template is कि हमारे पास interrogative questions होंगे, simple interrogative questions. For example, the question would be like कि what was that paragraph about? या what, for example, if a paragraph is about a father and a child, so your question can be what was the father telling the child, या how was the child grown up by the father, और इस तरीके से कोई भी हमारे पास सवाल हो सकते हैं, यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पैराग्राफ, ठीक है। अब आप लोगों को माइंड में होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस मींस कि आपके WH फैमिली वाले वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कि आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और या फिर आपकी थीम आ सकती है। नाउ व्हाट डज इट मीन, स्टेटमेंट क्वेश्चंस मींस कि आपकी पैराग्राफ में से एक स्टेटमेंट उठा ली, उसको यूं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर पैराग्राफ में ये बात हुई है तो उस बात का मकसद क्या था, उस बात का मतलब क्या था, ठीक है। अब ये थोड़ा इंक्लाइन करता है आपके सिनोनिम और एंटोनिम से, यानी आप एक वर्ड की मीनिंग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हम लोग ने सिंपली उन वर्ड की मीनिंग एक वर्ड से मेंशन करनी होती है, यानी ऑप्शन चूज करना होता है। लेकिन जो हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो एक लाइन के होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अब आपने उसकी लाइन के लाइक उसकी लाइन की एग्जैक्ट मतलब जो था ना, वो चूज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थीम के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या हो सकता है, या आप इस पैराग्राफ को क्या नाम दें, है ना। तो हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस गिवन होते हैं, एंड यू आर सपोज टू फाइंड के व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दैट पैराग्राफ। या आपसे यूं पूछा जा सकता है कि इस पैराग्राफ में ऑथर के अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ की थीम क्या थी, मेन आइडिया क्या था, ठीक है।
या फिर हमारे पास मीनिंग आ सकती है किसी भी फ्रेज की, किसी भी टर्म की, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अपने पैराग्राफ्स में यूजुअली देख रहे होते हैं। अब आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी हमारे पास टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती हैं, उसमें तकरीबन यही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। राइट, क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑल क्लियर। एक ये इस बात का क्वेश्चन का जवाब मुझे सारे दे दें ताकि मुझे थोड़ा अंदाजा हो जाए, बिकॉज इसके बाद हम चलेंगे एक रीडिंग पैराग्राफ को समझने के लिए, यानी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड होती हैं। सो वो मैं बताऊंगी, एंड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आई थिंक नेसेसरी है बताने के लिए। अच्छा, यहाँ पे यस मैम, क्लियर। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख लें, ये आपका सैंपल जो है आपके एसटीएस के टेस्ट में से ही लिया गया है। एसटीएस अगेन मेंशन कर दूं, सिबा टेस्टिंग सर्विस, यानी जो सखर आईपी यूनिवर्सिटी की टेस्टिंग सर्विस है, उसका नाम एसटीएस है। अब ये उस एसटीएस के क्वेश्चन पेपर में से एक जो है सैंपल लिया हुआ है कि इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है। अब देखिए यहाँ पे ऑल्दो लेंथ हमारे पास बिल्कुल छोटी सी है, वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे पास जो वर्ड हैं वो 100 to 300 के दरमियान आ सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, बिकॉज एक पैराग्राफ जो है आपका एक पेज के तकरीबन बराबर होता है, या हाफ पेज। So this is the sample and see हमारे पास जो questions हैं that are like the story is mainly about, यानी आपसे थीम पूछी जा रही है कि आपकी जो स्टोरी थी वो किस हवाले से थी। एंड द शिप इन द स्टोरी इज, अब सी यहाँ पे एक काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पोस्ट किया गया है, लेकिन उसको असर्टिव स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। यानी सवाल तो पूछा जा रहा है लेकिन उसको एक स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा रहा है। सो व्हेन आई वाज सेइंग कि सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आते हैं, आप ये भी समझ लें कि आपको हमेशा वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, शायद वो आपको असर्टिव जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ना उस फॉर्म में आ सकते हैं। राइट, एंड सी यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है एक क्वेश्चन को, एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को ही एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया गया कि अ ग्लोब इज शेप्ड लाइक, सो फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन माइट बी के व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्लोब, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में, या तो उसको स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस के तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंस ये हमारे पास सैंपल है, तो हम सैंपल से सिर्फ सैंपल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम यूं नहीं अज्यूम कर लेंगे कि यही क्वेश्चंस आएंगे या तीन ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस डिपेंड करता है आपके जो है टेस्ट के क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर। सो इफ आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 5 मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो ये जो क्वेश्चंस के नंबर हैं, ये जो उसके मार्क्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। आगे प्रोसीड करें। ऑलराइट, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ट्रिक्स के ऊपर। इससे पहले मैं इन 3 अप्रोचेस के ऊपर चलूं, मैं आप लोगों को जनरली टिप्स बताती हूँ, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। एक स्ट्रेटजी होती है कि हम लोग एक्चुअली अपना यूज करें स्टोरी मैपिंग, ठीक है। अच्छा, ये डिटेल्स जो है ये एक्चुअली आपकी खुद की पैराग्राफ राइटिंग को इंक्रीज करेंगी। अदर देन दैट, अगर हम स्पेसिफिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से बात करें ना, तो वहाँ पे अगर टेस्ट के हवाले से बात करें, वहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। तो ये वाले जो टेक्निक्स हैं, ये आप लोग जो है एक्सप्लिसिटली वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को ये चीजें बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। बिकॉज ऑब्वियसली जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोग जाना चाहते हैं, हर जगह आप लोग की जो है इंग्लिश का एक कोर्स होगा, फाउंडेशनल इंग्लिश होगा, या इस तरह से कोई ना कोई कोर्स होगा जहाँ पे आप लोगों की इंग्लिश होगी सारी की सारी, जहाँ पे आप लोग पैराग्राफ राइटिंग इंक्लूड होगी, या आपके कोई भी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, राइटिंग के हवाले से बहुत ज्यादा चीजें होंगी। सो फॉर द सेक ऑफ दोस टॉपिक्स, तो एक काइंड ऑफ आप लोगों को ग्लिम्स मिल जाए। आई वाज सेइंग कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्टोरी मैपिंग का। नाउ व्हाट इज स्टोरी मैपिंग? दैट इज जस्ट लाइक द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स that you use graphic organizer, और story mapping is just like कि आप यहाँ पे एक
ग्राफिक ऑर्गेनाइजर फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, तो द सेंटर ऑफ द थीम वुड बी योर टॉपिक ऑब्वियसली। आपका फॉर एग्जांपल टॉपिक है ए, यानी आप ए के हवाले से कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, दैट ए कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, आई एम जस्ट एडिंग एक्स वाई जी जस्ट लाइक, फॉर एग्जांपल ए टॉपिक है आपका। तो आप ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जब बनाते हैं, तब आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आइडियाज को, ठीक है। फर्स्ट आप लोग सोचते हैं, आप लोग मैपिंग करते हैं आइडियाज की कि मुझे कौन कौन से ए के हवाले से आइडियाज लिखने हैं। So for example, this is A and this is your letter A, ठीक है। तो for example अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे A से यहाँ पे एप्पल ऐड करना है, ठीक है, so that is one idea। यानी अब मैं अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A से फॉर एग्जाम्पल व्हाट अदर, एयरप्लेन लिख रही हूँ, राइट। अब मेरे माइंड में आता है कि एप्पल्स भी तो मेरे पास डिफरेंट कलर्स के होते हैं, सो नाउ आई वुड ऐड, क्या मेरा एप्पल ग्रीन है, क्या मेरा एप्पल रेड है, या मेरा एप्पल येलोइश है, येलोइश रेड है, ठीक है। सो यू सी ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हम लोग यूं बनाते हैं कि हम लोग अपनी मेन थीम यहाँ रखते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें जो आइडियाज ऐड करना चाह रहे हैं हम वो ऐड करते हैं, सो दीज आइडियाज इज एक्चुअली योर सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। दिस इज योर मेन आइडिया, लाइक द थीसिस स्टेटमेंट। द नेक्स्ट इज योर सपोर्टिंग डिटेल्स। अब ये इस सपोर्टिंग डिटेल्स की भी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं कि आप इसमें भी क्या ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे जो है सारे के सारे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स बनते हैं। अब ये चीज इसलिए नेसेसरी है कि अब चाहे आप राइटिंग के हवाले से यूज करें या किसी भी चीज, कोई भी आइडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करें, आपके पास एक माइंड मैप होना चाहिए जिसको हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर कहते हैं। माइंड मैप भी सिमिलर चीजें होती है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स भी सिमिलर चीजें होती हैं, और हमारे पास यानी जो हम लोग विजुअल्स ऐड कर रहे होते हैं वो भी सिमिलर चीजें होती हैं, कि आपके माइंड में जो चीज है ना आप उसको पेपर पे उतार रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ